वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। Hare Krishna. Once again we welcome all the devotees, seeking blessings of all the assembled Vaishnavas. We will try to start today's discussion. There's some echo, some voice back. Devotees are there? Online devotees? Devotees online? Okay. Dhanvat Pranam Mataji. Thank you. Thank you Mataji. So हम वैष्णव एटिकेट की सीरीज में थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं. Anyone remembers what is the essence of all rules and regulations? Always remember Krishna, never forget. Yes, always remember Krishna and never forget Krishna. So that is the essence. Okay, and so we a very quick go through. अब हम सब डिस्कस कर चुके हैं द इम्पोर्टेंस हाउ वैष्णव एटिकेट्स आर द ऑर्नामेंट्स. ए डिवोटी वांट टू डेवलप लव फॉर कृष्णा and therefore he wants to develop Vaishnava etiquettes, even though it may not be in his nature, but he wants to develop it. And we discussed that Vaishnava etiquette means all the time, in all circumstances, हर एक समय काल परिस्थिति में वैष्णव सदाचार से वो करना. और दूसरा है कि हमेशा अच्छा आचार. इसके हमने 2 डिस्कशन किए थे. यू रिमेंबर ऑल दी स्लाइड्स? यस और नो? Yes, no? Yes or no? Yes. Okay. It's early morning, so okay. So we discussed all this thing. और अभी तक हम why part को हमने टच करने का कोशिश किया. अब how और what में बेसिकली आज से हम जो वैष्णव एटिकेट का मैनुअल है, अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे. अभी तक तो फाउंडेशन था. Now we will go on to a structured manual, जहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग वैष्णव एटिकेट पर चर्चा करेंगे. हमारे बीच में बहुत सारे सुंदर वैष्णव्स हैं यहाँ पे, उनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं. एवरी डे वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सो मेनी वैष्णवस, बट टुडे वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज ग्रेस सदानंद निताई प्रभु. ओके, सो हमने डिस्कस किया. सदानंद प्रभु इज हियर. Okay, so we discussed Vaishnava etiquette helps to transform our consciousness, satisfies Krishna, satisfies devotees. It helps to have good relationship among devotees. It is a common language, पूरे international society for Krishna consciousness, जिसमें हजारों तरह के लोग हैं with different backgrounds, different countries. उन सब के लिए एक common platform है, एक common language है, एक common तरीका है dealings का. Otherwise, the dealings would be very different in different cultures. So we talked about this. It saves us from the weeds. It helps us in also preaching, because people may get attracted to the sadachar of a devotee and come to the shelter of Krishna. We talked about Srila Jayanand Prabhu. Yes or no? Do you remember? I will tell one little short story more about Jayananda Prabhu. When जब Jayanand Prabhu जी का तिरुभाव हो गया, वो चले गए. Of course, Srila Prabhupada ensured that उनका नाम जो है वैष्णव कैलेंडर में रखा जाए. We talked about other day about his pastime. You remember कि how a person became a devotee just because जयानंद प्रभु सफाई कर रहे थे, कचरा इकट्ठा कर रहे थे, and he said, if कचरा वाला is so happy, everyone should be very happy. Let me join the temple. So that's his temple joining. It's no PBT. It's only inspiration from. फिर एक और डोनर थी, एक माता जी डोनर थी. And she was a foreign, of course, lady, and she did not like Hare Krishna movement. She was kind of atheistic lady. और जयानंद प्रभु उनके पास जाते थे
उनको प्रसाद देते थे, उनको इंस्पायर करते थे फिर भी, और कभी कभार वो कुछ डोनेशन दे देती थी। जब जयानंद प्रभु चले गए, तिरुभाव हो गया उनका। जब जयानंद प्रभु का तिरुभाव हो गया तो जो कुछ डिवोटीज थे उनके सेंटर के, वो देख रहे थे जयानंद प्रभु किस किस से मिलते थे, कहाँ कहाँ से डोनेशंस इकट्ठा करते थे। टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे जयानंद प्रभु, और ड्राइवर भी थे, ड्राइविंग करते थे, टैक्सी चलाते थे, मतलब ऐसे नहीं कि बेस की गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे। उससे जो पैसा मिलता था उससे मंदिर का खर्चा चलता था। तो वो लेडी जो थी वो गई, शी सेड, लुक, आई एम एथिस्ट, I don't know about this all religious activities, but because I like Jayananda, I will continue to give you donations. तो जयानंद प्रभु के जाने के बाद भी उनसे इंस्पिरेशन होकर वो माता जी उन भक्तों को डोनेशन देती थी। एंड दिस इज नॉट ए इंडियन पायस लेडी, दिस इज ए फॉरेन लेडी। वी टॉक्ड अबाउट हाउ हनुमान जी wants to please Lord Ramachandra, puts the red sindoor all over his body, because so we discussed, and I am happy to see many devotees are in dhoti kurta today, because they want to take that austerity to please. We are skipping these slides because time is too short, otherwise it is always good to have some recapitulation. उसके बाद हमने लास्ट में फीडबैक के टॉपिक पे आए थे, और फीडबैक में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे आप में से किसी ने किसी को दिया फीडबैक। हाँ, अभी चालू नहीं हुआ शायद, तो इस वीक में हम फीडबैक देने की मैंने तो दिया 1-2 भक्तों को, और 2-3 भक्तों ने मुझे भी दिया। सो इट वॉज हैवी, इट वॉज गुड। सो फीडबैक टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, हमने फीडबैक के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर। वी विल नॉट गो थ्रू देम अगेन। एंड फाइनली टुडे वी आर कमिंग टू a beautiful pastime from Ramayana. Anyone can make out what is this pastime? Vibhishana taking shelter of Lord Ramachandra. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहला वैष्णव एटिकेट मैनुअल में है, उसमें जो पहले 2 टॉपिक हैं, दैट इज बिकमिंग हम्बल एंड ऑफरिंग ओबिसेंसेस, यानी कि दंडवत प्रणाम। अगर आप देखेंगे हमारा ये वैष्णव एटिकेट मैनुअल है, ऑनलाइन डिवोटीज को मैनुअल दिख रहा है अभी या फिर पीपीटी दिख रहा है? अगर आप ये देखें, ये बुक हम सबके पास हो सकता है। दिस इज द वैष्णव एटिकेट मैनुअल, और दिस हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय द डिवोटीज ऑफ इस्कॉन चौपाटी अंडर द एक्सपर्ट लीडरशिप ऑफ श्रील राधानाथ स्वामी महाराज। अगर आप ऑनलाइन डिवोटीज को दिख रहा है ये कॉन्टेंट्स वंस अगेन? ओके, सो अगर आप देखेंगे, हमने अभी तक सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट किया है। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है पिछले डिस्कशंस में, दैट इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड द एसेंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटिकेट विद इन द टेम्पल, और आज हम पहले 2 टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे, कृष्णा विलिंग, इन वेरी लिटिल टाइम दैट वी हैव। सो बिकमिंग हम्बल एंड ऑफरिंग ऑबिसेंसेस। माता जी इसको बाद में कर लो। बिकमिंग हम्बल एंड ऑफरिंग ऑबिसेंसेस। तो जितने भी वैष्णव आभूषण हैं, वैष्णव के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं, जो वैष्णव सदाचार है, उन सब में जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, और सारे बाकी के वैष्णव सदाचार को सुंदर बनाता है, वो है ह्यूमिलिटी। बाकी सारा कुछ हम कर लेंगे, लेकिन अगर वो कोई भी सदाचार भी, जो एक्शन भी है, वो ह्यूमिलिटी के साथ नहीं होगा, तो इट विल बी लाइक खीर विद सैंड। मतलब खीर तो होगा, लेकिन उसके अंदर वो किरकिरापन होगा, क्योंकि ह्यूमिलिटी एब्सेंट होगा। तो ह्यूमिलिटी जो है वो सारे वैष्णव के जो आभूषण है, सदाचार है, उन सबको और सुंदर बना देता है कि नहीं? और ह्यूमिलिटी का ही एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट है ह्यूमिलिटी को एक्सप्रेस करने का, वो है ऑफरिंग ऑबिसेंसेस। तो हम रामायण के इस पास टाइम को रिमेंबर करते हैं। आप सब इस लीला को जानते हैं, जब विभीषण जी वापस लंका छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र के सेन उसमें आ गए थे। यू रिमेंबर, विभीषण जी वहाँ से रावण को छोड़कर, उन्होंने पहले रावण को बहुत समझाया, बट रावण वॉज एडमेंट, एंड देन ही केम टू द पार्टी ऑफ लॉर्ड Ramachandra, because he knew the ultimate purpose of life is to surrender to the Lord, not just a brother or a kingdom like that. So you know what happened?
इफ यू लुक एट रावण, रावण रावण बहुत बड़े पंडित थे, रावण बहुत बड़े तपस्वी भी थे। आपको पता है रावण को कितना शक्तियां, इतना बहुत बलवान थे, ऐसे वैसे हल्के फुल्के आदमी नहीं थे रावण। लेकिन रावण इतने पावरफुल कैसे बने? यू नो व्हाट ही डिड, व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस ही डिड। हाँ, क्यों दशानन बने रावण? क्यों, कैसे बने दशानन? उनके 10 मुंह कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने शिव जी पे तपस्या करना थी, अपने सिर काट काट के जलाई थी। यस, वो अपने 10 सिर काट के, मतलब 9 सिर काट के डाले उन्होंने। बार बार उनका इतना माया भी, इतना शक्ति भी था उनके पास, और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते। तो यज्ञ में 10, आई थिंक 9 सिर उन्होंने डाले। तो फाइनली लॉर्ड शिवा वाज फोर्स्ड टू कम। उन्हें बोला क्या चाहिए भाई तुम्हें, इतना तपस्या कर रहे हो आप? एंड देन ही वांटेड टू बिकम वेरी पावरफुल, एंड देन लॉर्ड शिवा, बिकॉज ऑफ दी, सो उनको भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 10 सिर का बलिदान करा और इतना तपस्या करा। लेकिन अगर आप विभीषण को देखोगे तो विभीषण ने क्या किया? बस एक ही सिर था, उनके तो 10 नहीं थे, हैं? उन्होंने उस एक सिर को भगवान के सामने झुकाया बस। तो 10 सिर को झुकाने में, काट के डालने में जो रावण को नहीं मिला भगवान का वो कृपा मिला, वो चीटिंग मर्सी मिला लॉर्ड शिवा का, जिसमें उनका और मेटेरियलिस्टिक एम्पावरमेंट हुआ। लेकिन विभीषण को जस्ट एक सिर झुकाने से, भगवान को प्रणाम करने से, लॉर्ड रामचंद्र को प्रणाम करने से क्या हो गया? सब कुछ मिल गया। इतना मिल गया कि भगवान राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया पहले, लड़ाई से पहले ही, मतलब लड़ाई से पहले उनको बोल दिया कि यू आर द किंग ऑफ लंका। तो सबने बोला कि भगवान रामचंद्र, सब पहले तो सब लोग डाउट कर रहे थे कि विभीषण को ही में बी ए स्पाई दूसरी पार्टी के, लेकिन लॉर्ड रामचंद्र इतने काइंड हैं, बोले कि मेरे को प्रणाम किया है और मेरा शेल्टर में आए, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। तो फिर किसी ने बोला कि अच्छा भगवान, अगर कल रावण भी अगर आ गया आपके शेल्टर में, लंका का राजा, तो आपने इनको बना दिया, तो रावण को क्या दोगे फिर? बोले रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा। तो बोले रावण को अयोध्या दे दोगे तो वो तो आपने भरत को देना है, भरत को दे के आए हो। अगर भरत आ गए कि अयोध्या का क्या हुआ? तो बोले क्या हुआ फिर? मैं उनको, हाँ, मैं उनको साकेत धाम दे दूंगा अपना। तो बोले फिर आप कहाँ रहोगे? क्या बोला भगवान ने? हाँ, he said कि I will become servant of all these three, so that is Lord रामचंद्र। तो आप देखिए कि ये जो प्रणाम है, ह्यूमिलिटी और सरेंडर, ये बहुत पावरफुल है। ये जो हमें बहुत कठिन तपस्या से भी नहीं मिल सकता, वो हमें जस्ट हम्बली भगवान को और भगवान के भक्तों को प्रणाम करके मिलता है। ये प्रणाम करने का जो कल्चर है, ऑफरिंग ऑबिसेंसेस, ये शुरू से है, लेकिन आज वो शॉर्टकट होता जा रहा है। पहले लोग पूरा प्रणाम करते थे, फिर धीरे धीरे पाँव छूना, ऐसे झुक के पाँव छूना शुरू किया। आजकल घुटने तक छूते हैं, और फिर वो भी नहीं करते आजकल, फिर दूर से, हैं, आजकल टच नहीं करते, बस ऐसे हल्का सा एक एक्शन दिखा देते हैं कि इंडिकेटिव कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और धीरे धीरे तो फिर हाय हेलो पे आ गया आजकल, अलग अलग जगह पे शुरू हो गया है। हाय मॉम, हाय डैड शुरू तो हो ही गया है, भारत में भी शुरू हो गया, बाहर तो है ही है। तो धीरे धीरे ये प्रणाम करने का जो कल्चर है वो क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। लेकिन वैष्णव एटिकेट में कई बार लोग जो है बड़े सरप्राइज होते कि फॉरेन में खास तौर से बोलते कि एक चीज़ हमें समझ नहीं आता है कि ये इस्कॉन के डिवोटीज़ को बहुत सारी चीज़ें, कीर्तन है, अच्छा है, प्रसाद है, लेकिन ये एक दूसरे को देखकर गिर क्यों जाते हैं नीचे? तो बिकॉज दैट इज़ दी सदाचार। और अगर आप चलेंगे साउथ इंडिया, और वन ऑफ माई वेरी डियर और वेरी फेवरेट आचार्य इस कुलशेखर आचार्य, जिन्होंने बहुत सुंदर कंपोज किया है, कौन सा? मुकुंद माला स्तोत्र, जो कि शिला प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं। साउथ इंडिया में 12 आल्वर्स हैं। आल्वर्स मतलब ग्रेट आचार्यस, जिन्होंने भगवान का बहुत ग्लोरिफिकेशन लिखा है। इनफैक्ट जो 108 दिव्य देशम है, आपको पता होगा, साउथ जो हम चर्चा भी कर रहे थे उस समय, तो वो दिव्य देशम का जो नंबरिंग है, एक किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, वो इस बेसिस पे है कि वहाँ पर कितने आल्वर्स गए
मतलब एक समय में नहीं थे सारे 12, अलग अलग टाइम पे आए, कभी कोई आया कभी कोई आया। और उन सब बाल, तो आप समझ रहे, जैसे जैसे श्रीरंगम जो है वो इस व्हाट्स दैट कॉल्ड, उनका उसका जो 108 दिव्य देशों में श्रीरंगम का नंबर पहला आता है, क्योंकि वहाँ सारे 12 आल्वर्स वहाँ पे गए। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि धाम की रैंकिंग हो रही है किससे, कि कितने आल्वर्स वहाँ पे गए, और उन्होंने वहाँ पे दिव्य प्रबंधम कंपोज किया। तो कुलशेखर जो आल्वर हैं, ही वॉज ए किंग, और उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र में बड़ा सुंदर श्लोक कंपोज किया है। उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन उसका जो मतलब है उसमें बता रहे कि कैसे हमें अपनी सारी इंद्रियों को यूज़ करना है भगवान के सेवा में। और उसमें वो फाइनली कंक्लूड करते हैं किससे, कि जो हेड है वो यूजलेस है, हमारा जो सिर है उसका एक ही काम है, क्या, भगवान के लोटस फीट में झुकना। अगर भगवान के सामने वो सिर नहीं झुक रहा है तो दैट हेड इज यूजलेस। If the tongue is not chanting the holy name of Krishna, that tongue is useless. If tongue is not tasting Krishna prasadam, that tongue is useless. That part we are all very good at. So without exception, everyone likes Krishna prasadam. So we taking shelter of the wonderful teachings of Kulshekhar Alwar, जो कि बता रहे हैं कि हमें इसी तरह से एक और श्लोक सोचिए, कौन सा श्लोक है, चलिए आप लोगों से थोड़ा टेस्ट करते हैं, कौन सा और श्लोक है जिसमें एक और राजा हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में यूज करते हैं, बहुत फेमस है। यस प्रभु, विच इज, यस, विच श्लोका, सवै मना कृष्णा पादार विंदयोर वाचांसि वैकुंठा गुणानुवर्णने गरो हरिर्मंदिरा मार्जनादिषु श्रुतिम चक्रच्युत सत्कथोदये। ऐसे आई मे बी सम मिस्टेक बट दैट्स द श्लोका। सो इसी तरह अम्बरीश महाराज भी अपने सारे चीज़ों को, सारे बॉडी ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं किसके लिए, भगवान की सेवा में। और यहाँ पे कुलशेखर आल्वार विशेष रूप से भगवान को प्रणाम करने के लिए बता रहे हैं। आपसे थोड़ा सा और टेस्ट लेते हैं, और शास्त्रों में बताइए कहाँ पर भगवान को प्रणाम करने के लिए महिमा या उसके बारे में कहा गया है। ऑल द स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, विच वन? प्रभु क्या होता है, भागवतम में स्तुतियां कितनी हैं? बिल्कुल माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी भी स्तुतियां होती हैं उसमें सब में पहले क्या होता है, नमो पंकज नाभाया, है ना, फिर नमामीश्वरम, मतलब हर चीज में नम जो नमा वर्ड है, एंड इट इज नॉट ए रिचुअल कि चलो एक नमो वर्ड लगा दिया आगे सब में। सो नमो मीन्स वी वांट टू बो डाउन, है कि नहीं। और तो भागवतम में सारी श्रुति, खासतौर से कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसमें भी आता है, गजेंद्र की प्रार्थनाओं में भगवान को बार बार वो प्रणाम कर रहे हैं। और कौन से शास्त्र में है बताइए? यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमारे प्रभु जी बता रहे हैं, लविश प्रभु श्रीमद् भागवतम में कहाँ जो लास्ट श्लोक है, लास्ट श्लोक में दो ही चीज़ों का रेफरेंस आ रहा है पूरे भागवतम के कंक्लूजन में, एक होली नेम और एक प्रणाम, नाम और प्रणाम, नाम और कुछ लोग बोल भी नहीं रहे तो गिरेंगे किधर, नाम और प्रणाम। ऑनलाइन वक्त ज्यादा है। नमस्ते करो, मतलब मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मैं कुछ नहीं कर सकता तो मुझे नमस्कार करो, कुछ नहीं कर सकते नहीं मतलब यस। तो कौन सा श्लोक है? मन मना मत भक्तो मध्याजी नमस्कुरु। तो एक बार एक भक्त गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे। आपको पता है गिरिराज जी में लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं, देखा आपने? इवन हमारे कई महाराज लोग भी करे हैं, इंद्रदम्न स्वामी महाराज, सच्चिनंदन स्वामी महाराज, कई बार दंडवती परिक्रमा, मतलब एक स्टेप पे। हम तो गोवर्धन परिक्रमा करके थक जाते हैं एक चक्कर लगा के, अभी तो खैर द्रौपदी मुर्मू जी भी कराई, तो हमें भी करना चाहिए। तो लेकिन जो कई डिवोटी हैं जो एक स्टेप लेने पर वहाँ पे एक बार प्रणाम करते हैं। कई वैष्णव ऐसे हैं जो एक स्टेप लेने पर 108 बार प्रणाम करते हैं पहले, अगला स्टेप तब रखेंगे जब 108 प्रणाम करेंगे एक जगह पे।
और वो कैसे काउंट करते हैं, वो पत्थर रखते हैं, देखा आपने, वो एक बार प्रणाम करेंगे एक पत्थर आ गए, फिर प्रणाम करेंगे पत्थर आ गए, फिर पत्थर आ गए, एक स्टेप पे 108, और इससे भी ज़्यादा एक है, ऐसे भक्त है जो एक स्टेप पे 1008 प्रणाम करते हैं। कैन यू इमेजिन? तो वो तो अपना साथ में खोखा सा, आप देखोगे गोवर्धन परिक्रमा के साथ में उधर कुछ रिक्शा ऐसे छोटे से जैसे यहाँ तो सिगरेट के खोखे होते हैं ना, वहाँ पे बाबाओं के खोखा होता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि 1008 प्रणाम करना है वहाँ, अगले महीने तक वहाँ पहुँचेंगे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि गोवर्धन परिक्रमा करते करते ही अपने शरीर को त्यागना, इसलिए करते रहते हैं वो एक एक स्टेप पे। वहीं पे कुकिंग भी उसी में कर लेते हैं छोटा सा, वहीं बैठ के भजन करते हैं, फिर 1008 प्रणाम करते हैं, फिर अगला कदम लेते हैं। तो ऐसे कई डिवोटी हैं। तो एक बार ऐसे एक भक्त से महाराज ने पूछा कि आप ये व्हाट्स दैट श्लोका, लेट्स टेक आउट दैट श्लोका, मन मना भव मत भक्तो, भगवद गीता 18 पॉइंट। एक मिनट माता जी, हाँ 934 और 1865 दोनों सेम। 18, ये भगवद गीता के आई थिंक 2 श्लोक हैं जो 2 बार रिपीट होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दैट श्लोका, मन मना, दे कैन सी, वेयर डू आई गो, स्टॉप शेयरिंग, सॉरी, तो वेदावेश खुल गया, सॉरी, कैन यू। तो ये जो श्लोक है, तो एक बार एक भक्त ऐसे ही 108 वाली दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, तो उनसे महाराज ने पूछा कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि आप 108 बार प्रणाम करते हो हर एक कदम पे। तो उन्होंने भगवद गीता का ये श्लोक कोट किया, उन भक्त ने जो परिक्रमा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला, कह रहे कि भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया भगवद गीता में, मन मना भव मत भक्तो। तो बोले कि मन मना, सबसे पहले हर समय भगवान के बारे में सोचना। बोले माइंड इतना जालिम है, इतना दुष्ट है, भगवान के बारे में सोचने नहीं देता। तो मुझे लगा कि ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर बोले मत भक्ता, बोले भक्त का पोजीशन भी बहुत बड़ा है, भक्त मतलब इस लाइफ एंड सोल इज कृष्णा। तो मैं भक्त भी नहीं बन पाता, मुझे लगता कि इस लाइफ में नहीं कर पाऊंगा। फिर बोले कि वर्शिप में, बोले वर्शिप करने में भी इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है कि कुछ करूंगा तो सही, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है। और फिर क्या बोले, नमस्कार करो। बोले यही चीज़ मुझे लगा सबसे आसान है, कि नमस्कार करना, भगवान को प्रणाम करना सबसे आसान है कि नहीं। मन में, मन को कंट्रोल करना, भगवान में लगाना, लेकिन प्रणाम, हम सारे लोग कितनी बार मन में कृष्ण को याद कर पाते हैं। इवन 16 माला करते हुए भी हम कितनी बार याद कर पाते हैं, बहुत टफ है। लेकिन प्रणाम कितने भक्त करते हैं, सारे भक्त करते हैं, है कि नहीं। तो प्रणाम करना ये एक सिंपल भी है लेकिन बहुत पावरफुल है, सिंपल येट पावरफुल टूल ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो हमने भी देखा। और आपको ये रेफरेंस बताइए कि आचार्यों के बारे में क्या बताया गया, वो कैसे प्रणाम करते थे, कितना प्रणाम करते थे, कोई रेफरेंस है, कोई विशेष आचार्य के बारे में? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में कितना प्रणाम करते थे? यस, 1000 प्रणाम भगवान को। हम कितना करते हैं? एक बार, वो भी शॉर्टकट में। और वैष्णवों को 2000। रघुनाथ दास गोस्वामी का देखना पड़ेगा कि कैसे हैं, 3,000 प्रणाम्स इन ए डे। और हम एटलीस्ट हम लोग 3 बार तो कर सकते हैं, यशस्त्री संध्याम, है कि नहीं। तो भगवान को प्रणाम करना, वैष्णव को प्रणाम करना, बताते कि हम प्रणाम करते हैं, हमारे सारे पाप क्या होते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। और भगवान देखते हैं, और भगवान से भी ज़्यादा कौन देखता है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी देखती हैं, बेचारा बीटेक का स्टूडेंट है गलगोटिया से, और इसको जो है भगवान थोड़ा कृपा करो। हम वैसे भी थोड़ा सा भी झुक जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लेकिन ये प्रणाम कैसे करें, और बहुत कन्फ्यूजन होता है। डिवोटीज जो है यहाँ घुसते हैं, कोई इधर प्रणाम कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कई बार किसी के पाँव भी आ रहा होता है किसी के ऊपर, एंड इस तो हाँ, तो जो पहला, अब मैनुअल पे जाना चाहते हैं, तो प्रणाम करने का जो क्या प्रोसेस है, उसमें कई सारे ये है।
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखा गया है, लेकिन मैनुअल दिख रहा है भक्तों को, डिवोटीज ऑनलाइन? आई एम क्वाइट। अब मेरे को क्या करना, ये दिखने के लिए क्या करना है? तो हमें तब तक बोलते, तो हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए? मंदिर में आते हैं, कभी पर्दा खुला होता है, कभी बंद होता है, प्रभु जी को कैसे प्रणाम करना है, इस पे हम अगले 10 मिनट चर्चा करके फिर आज फिनिश करेंगे। तो सबसे तरीका क्या है? सबसे पहले जब आप मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना होता है? सबसे पहले हैं? सबसे पहले जब आप टेम्पल हॉल के अंदर घुसते हैं तो मैं देखता हूँ आज, मतलब इस हॉल में मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्शन बचा होगा जिसमें भक्तों ने प्रणाम नहीं किया। कोई इधर कर रहा होता है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर। आज एक भक्त प्रणाम कर रहे थे, मैं फिर पूछा, मेरे साथ कोई बैठे थे, मैंने कहा किसको कर रहे हैं प्रणाम? तो बोले कि वो यहाँ कर रहे हैं ऐसे, तो वो कह रहे कि उधर शायद ऑल्टर की तरफ प्रणाम कर रहे हैं। तो पता भी नहीं चलता भक्त किधर प्रणाम कर रहे हैं, है कि नहीं? कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले एटिकेट क्या है कि जब हम टेम्पल हॉल में आए, सबसे पहले असेंबल्ड वैष्णवास को हम लोग प्रणाम करें। तो ये आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। सो अपॉन एंटरिंग द टेम्पल वन शुड ऑफर ऑबेसेंसेस टू ऑल दी असेंबल्ड वैष्णव। कौन सा प्रणाम मंत्र है? ये हम सबको, जिनको याद नहीं है, हम याद कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो घुसते ही पहले सारे वैष्णव का ब्लेसिंग्स ले लें। और जो प्रभु जी हैं, और जो इसमें 2 तरह के प्रणाम करते हैं प्रभु जी, है ना? एक होता है अष्टांग प्रणाम और एक होता है पंचांग प्रणाम। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? ये पंचांग प्रणाम। इसमें 5 अंग हमारे जो है जमीन को टच करते हैं, इसलिए पंचांग प्रणाम है। और अष्टांग में हमारे शरीर के 8 अंग जो है वो पृथ्वी को टच करते हैं। और माता जी के लिए केवल एक ही वैरायटी है इसमें, वो कौन सा है? पंचांग प्रणाम। तो माताओं के लिए सिंपल है, प्रभु जी के लिए 2 तरह का। हाँ, और इनफैक्ट जो प्रणाम है, हमारे जो दिनचर्या शुरू होता है, एक्चुअली दिन का जो सबसे पहला चीज़ हमें करना है, सुबह उठते ही, इवन अपने बेड से उतरने से पहले, वो हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। किसको प्रणाम करना चाहिए? वैष्णवों को। अगर आपके आसपास में, आपके रूम में डिवोटीज सो रहे हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, या उठ गए हैं मतलब। और गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु का प्रणाम मंत्र पुकारना चाहिए, और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बेड से भी कर सकते हैं, और बेड से नीचे उतर के एक्चुअली ज़मीन पे भी आके आप प्रणाम कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा शुरुआत ही होता है बोइंग डाउन से, हमें याद दिलाने के लिए कि हम वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। जैसे कोई आदमी को जो एक्सीडेंट होता है, उसका याददाश्त खो जाता है ना, तो उसको बार बार बताते हैं, देखो आप वहाँ गए थे, याद आ रहा है कुछ? देखो ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारे अंकल हैं, फोटो दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं, उसको याद दिलाते हैं। इसी तरह से जब हम मंदिर में आते हैं तो भगवान का जो सिंहासन है वो ऊपर होता है, और हम लोग भूल गए हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। हम भोग वांछा करने के चक्कर में भगवान को भूल गए। हम भूल गए कि भगवान मास्टर है और हम सर्वेंट हैं। इसलिए उसको याद दिलाने के लिए बार बार हम जब जितना बार प्रणाम करते हैं, हमें याद आता है कि ही इज़ दी मास्टर। और जैसे याददाश्त खो जाती है, बार बार करने से याददाश्त वापस आती है, तो धीरे धीरे हमारे माइंड के जो सटल कॉन्शियसनेस, उसमें ये एब्जॉर्ब होगा कि वी आर दी सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, वी आर नॉट दी एंजॉयर। तो ये जो वैष्णव, सबसे पहले हमें, जैसे हमारे बेस में यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले सब वैष्णव को प्रणाम किया। उसके बाद किसको प्रणाम करना चाहिए? हाँ माता जी, हाँ। तो राइट, तो उसमें मैं कई लेक्चर्स मैंने सुने, क्योंकि इसमें कई लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन मान लीजिए सबसे पहले वहीं पे तुलसी महारानी रखी है, सपोज आप सुबह आए और तुलसी महारानी को डिवोटीज ने वर्शिप किया, अभी माता जी की टीम वहाँ करती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम अब उनको, तो हमें बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुलसी महारानी सामने है तो पहले हम तुलसी महारानी को प्रणाम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे जैसे इस समय भी नहीं है तो अंदर आ सकते हैं। और लॉजिस्टिकली अगर हम देखें तो जैसे अब मंदिर में जाते हैं, राधा पार्थ आरती मंदिर में, तो बाहर गरुड़ जी हैं, तो हम गरुड़ जी को नेचुरली उनको पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम अंदर जाते हैं, फिर शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि घुसते ही पहले शिला प्रभुपाद जी का दर्शन भी होता है और सामने जगह वो है, तो डिवोटीज पहले शिला प्रभुपाद जी को वहीं से ऐसे प्रणाम कर सकते हैं ऐसे, और फिर
गरुड़ जी को कर सकते हैं, और फिर इधर से ऐसे घूम के यहाँ पे डीटीज को प्रणाम कर सकते हैं। ऐसा सीक्वेंस हो सकता है। कोई वक्त पहले गरुड़ जी को भी कर रहे हो सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके, बट उसमें यही था कि हम एक कॉमन वो रखेंगे तो अच्छा रहेगा, सबको पता होगा। कोई नया भी आएगा तो उसको पता होगा कि ये करना, नहीं तो कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई उधर है, कोई उधर है सब दिशाओं में प्रणाम करते हैं भक्त। तो क्लियर है। तो हम यहाँ इस बेस के लिए एटलीस्ट ये सिस्टम रख सकते हैं। आते ही प्रभुपाद जी को प्रणाम करें, संस्थापक आचार्य, उसके बाद गरुड़ जी को, फिर माता जी। हाँ माता जी वहीं से, हाँ माता जी वहीं से करेंगे। और प्रणाम जब हम करते हैं तो हमें बोलना क्या है? शिला प्रभुपाद जी के 2 डिसाइपल्स गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु, शिला प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया और बोले जाओ घर जाके अपने मदर को भी प्रणाम करके आओ, उनसे मिलो, आशीर्वाद लेके आओ। तो ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु दोनों गए और उनकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो दंडवत किया उन्होंने, पूरा अष्टांग दंडवत। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा प्रणाम मंत्र क्या बोलना है, तो मम्मी को प्रणाम कर रहे हैं और बोले नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, क्योंकि उनको एक ही प्रणाम मंत्र आता था। तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र है। सबसे पहले हम भक्तों को ये करेंगे। प्रभुपाद जी को जब हम प्रणाम मंत्र करते हैं या जब भगवान को प्रणाम मंत्र करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम के साथ कुछ प्रेयर्स होना चाहिए। ये मैकेनिकल नहीं कि डिप डाउन एंड देन यू आर बैक। तो प्रणाम जब करते हैं तो सबसे पहले हमें गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, 5 मिनट का एक्सटेंशन अप्रूव्ड। तो सबसे पहले हमें जब हम जैसे प्रभुपाद जी को भी जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो परंपरा के माध्यम से हम लोग जाते हैं, सबसे पहले हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। अगर आपका दीक्षा हो गया है या आपके दीक्षा गुरु आपने निर्धारित कर लिया है, यानी कि आप शेल्टर ले चुके हैं जिन भी गुरु महाराज का, तो उनका पहले प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जब प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे तो ये 2 मंत्र हमें बोलने चाहिए। और फिर जब भगवान के ऑल्टर में प्रणाम करते हैं तो फिर वापस से आप यहाँ पे गुरु और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल चुके हैं, लेकिन वहाँ पे फिर दोबारा जाके हमें गुरु का मंत्र, फिर शिला प्रभुपाद जी का मंत्र, और फिर जो डीटीज़ हैं उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। अब यहाँ पे तो इतने डीटीज़ हैं कि आप लोग उठोगे नहीं शाम तक हमारे बेस पे किस किस का बोलोगे। इसलिए जो प्रिजाइडिंग डीटीज़ हैं उनका हम लोग प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जैसे मंदिर में है तो जगह कम है, अब दिल्ली मंदिर में गए और आप वहाँ लेट गए, वो गार्ड बोलेगा उठो उठो प्रभु जल्दी, क्योंकि भीड़ है, बाकी लोगों को भी प्रणाम करना है। तो जीबीसी ने एक इसके पीछे एक वो दिया था थोड़े दिन पहले, एक रेजोल्यूशन कि जब भी हम प्रणाम करें, जब हमारे पास ज़्यादा समय ना हो, तो प्रभुपाद जी का एटलीस्ट जो फर्स्ट लाइन है उसको हमें एटलीस्ट बोलना है, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। तो इतना प्रणाम हमें क्या करना है, जरूर बोलना है। और प्रणाम करने के जो पोस्चर्स हैं, है ना, वो पोस्चर्स में उसमें दिया हुआ है पीछे। तो हम एक काम करते हैं जल्दी से, बस 5 मिनट लेते हैं टोटल। और कोई भक्त प्रणाम करके दिखा सकता है क्या एग्जैक्टली कैसे प्रणाम, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी है। तो जैसे कि जो अष्टांग प्रणाम है वो कुछ ये आपको दिख रहा है ऑनलाइन डिवोटीज को, प्रभु जी दिख रहा है, ओके ठीक है। तो अष्टांग प्रणाम में जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये वाला है। और कुछ हमारे भक्त इतने थके होते हैं तो वो कहते हैं थोड़ा रेस्ट ही हो जाए। मैं अपना ही आपको बात बता रहा हूँ, जब मैं एक बार बहुत पहले यमुना नगर में था, आई वॉज ऑल्सो इन यमुना नगर, एंड तो वहाँ पे मैं जॉब करता था और अकेला रहता था, कोई बेस वगैरह सेंटर कुछ था नहीं, तो मेरे घर में ही ऑल्टर था और कुछ लोग वहाँ पे आते थे प्रोग्राम के लिए। तो सम टाइम आई वुड बी सो टायर्ड, क्योंकि सुबह कुकिंग, फिर शाम को कुकिंग, ऑल्टर की सफाई, आरती करना, लेक्चर सुनना। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं प्रणाम कर रहा था शाम को, मतलब रात के समय, ऑलरेडी इट वॉज क्वाइट लेट, और मैं प्रणाम करते करते सो गया। पूरे रात ऑल्टर खुला है और मैं सुबह ही उठा वहाँ पे। तो बिकॉज आई वॉज अलोन, सो मैनी थिंग्स टू डू, क्वाइट टायर्ड, सो लाइक दैट। सो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भगवान के सामने नहीं सोना है। तो प्रणाम करने के लिए अटेंटिव, और दोनों हाथ आगे टच और पीछे दोनों पाँव टच,
बोलते हैं ना हाथ पांव जोड़ रहा हूँ प्रभु जी, तो हाथ जोड़ना और पांव जोड़ना दोनों को जोड़कर हमें प्रणाम करना चाहिए। हमारे पास बीड बैग होता है, वो काफ़ी चैलेंज होता है कि बीड बैग को कहाँ रखें प्रणाम करते समय। तो सबसे जो आइडियल है उसमें आइडियल 1 2 3 हैं। तो सबसे आइडियल क्या है कि बीड बैग को कहीं रख दें। हमारे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। मंदिर में जाते हैं तो दिक्कत होती है, आप किधर रखोगे, पता चले बीड बैग रखा हो, कोई बीड बैग इधर उधर हो गया, और ख़ासतौर से दीक्षित भक्त का अगर बीड बैग खो गया तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए बीड बैग को कहीं अगर यहाँ पे टांग दें, फिर अच्छे से प्रणाम करें। तो कई वक्त क्या होता है, एक हाथ में बीड बैग लेते हैं, एक हाथ से प्रणाम करते हैं। ऐसे कई वैरायटी हैं, शायद इसमें पिक्चर होगा। हाँ, जैसे ये देखिए, जैसे पंचांग में ये कर रहे हैं, कॉपी ले रखी है, ये देख रहे हैं ये वाला, ये पंचांग प्रणाम, एक हाथ से प्रणाम, एक हाथ में कॉपी, तो ये गलत है। और बीड बैग हम जो सेकंड बेस्ट है कि बीड बैग को हम ऐसे हाथ में रख लें आगे प्रणाम करते समय, है कि नहीं। और थर्ड बेस्ट है कि बीड बैग को ऐसे बैक में भी रखते हैं, ऐसा भी सुना मैंने लेक्चर्स में कि बीड बैग को पीछे बैक पे रख दें। हालांकि उतना अच्छा नहीं है, इसलिए थर्ड बेस्ट है। फर्स्ट बेस्ट है बीड बैग को साइड में रख के अच्छे से प्रणाम करें, सेकंड बेस्ट है हाथ में, और थर्ड है फिर गुरु सन्यासी को देखते ही जितना बार देखें हमें उतनी बार प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि अरे सुबह कर तो दिया एक बार, तो अनलेस कि वो बोल दें आपको। तो एक बार ऐसे हुआ था, मायापुर में मैं था सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम के। अब सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम मतलब दिन में 200-300 दंडवत तो लग ही जाएंगे, क्योंकि उसमें 12-14 तो सन्यासी रुके हुए थे और सीनियर डिवोटी, और मेरा सेवा तो रूम के बाहर होता था सर्वेंट का। तो जब भी कोई अब इधर से वो निकल रहे हैं, अब महाराज निकल रहे हैं, फिर जा रहे हैं प्रणाम, फिर प्रणाम, फिर। तो एक बार ऐसे हिज होलीनेस राम गोविंद महाराज ने मुझे देखा। राम गोविंद महाराज शिला लोकनाथ स्वामी महाराज के सन्यास शिष्य, यू नो। सो शिला राम गोविंद महाराज थे, तो उन्होंने मुझे देखा, वो 4-5 बार मुझे देखे कि ये लड़का सुबह से प्रणाम ही करे जा रहा है। और मेरे पास आए, बोले प्रभु इट इज ओके, बोले इट इज ओके, आपने काफ़ी प्रणाम कर लिया मुझे। तो उन्होंने फिर, तो इस तरह से, लेकिन हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हमें शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए कि प्रणाम करे बिना ही कर लो। हमारी कोशिश रहती है कि नहीं कि हम जितना कम प्रणाम में काम चला लें उतना अच्छा है। लेकिन हम देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कितना 3000 प्रणाम कर रहे हैं। हम तो सोच नहीं सकते 3000 प्रणाम के बारे में, पूरा दिन प्रणाम ही है प्रैक्टिकली। तो हमें आलस नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और कुछ स्थिति है जब हमें वैष्णव को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कुछ स्थिति है। तो यहाँ पे बृहद नारदीय पुराण में लिखा है कि जब कोई वैष्णव प्रसाद पा रहे हो, नहा रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, और या फिर पता चले एक डिवोटी बाथरूम में नहा रहे, या फिर है ना गमछा अभी डाल के बाहर ही निकल रहे हैं और आप लेट गए वहाँ, और वो भक्त उसके हाथ में एक गमछा है, उधर से तिलक का डिब्बी है, क्या करे बेचारा, क्योंकि उसको भी इच्छा होती है कि वो प्रणाम करे। फिर साथ में हमें प्रैक्टिकली भी देखना है। जैसे कई बार बाहर होता है, कई बार वो काफ़ी डर्टी होता है जगह। अब कोई सीनियर ऐसे जैसे गुरु महाराज ऐसे कोई बहुत सीनियर डिवोटी, तो फिर ऑफ कोर्स हमें उस जगह को भी ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे कॉमन व्यवहार में हमें देखना चाहिए कि थोड़ा सा ऐसी जगह पे हम प्रणाम कर सकते हैं जो रिलेटिवली बेटर है ना, क्योंकि फिर उन्हीं हाथों से वो सब हमें सेवा भी करना है। और बट इसका ये मतलब नहीं हम कि अवॉइड करें। कई बार भक्त इसलिए भी दूसरों को प्रणाम नहीं करते कि सीनियर डिवोटी वापस प्रणाम करेंगे, है कि नहीं। कई बार हमारे मन में ये भी संकोच आता है, लेकिन हमें फिर भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ का लग रहा है कि वो सीनियर भी बार बार प्रणाम करेंगे, तो हम ऐसे जगह से प्रणाम करें कि हम उनको प्रणाम कर लें, और वो मतलब ऐसे डायरेक्टली आप सामने जाके करोगे तो खासतौर से मायापुर में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशी नरसिंह महाराज, मैं आपको जस्ट एक लास्ट बात बता के फिर विराम देता हूँ। तो महाराज जो है वो ऐसे इतने विनम्र हैं, इतना उनके अंदर विनम्रता कूट कूट के शुरू से एंड तक भरा हुआ है कि वो अपने ही सर्वेंट्स को प्रणाम करते हैं। तो मेरे को बहुत संकोच होता है, क्योंकि जब रात को कोई सेवा खत्म होती है, उनके रूम से बाहर आना है तो प्रणाम करेंगे, अब करना ही है प्रणाम महाराज को। तो या फिर सुबह भी जब जाते हैं तो महाराज को प्रणाम करना है, तो महाराज पूरा प्रणाम करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। तो बहुत एम्बैरेसिंग भी होता है, लेकिन वैष्णव को प्रणाम भी करना है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप, मैंने सोचा कि जो है मैं प्रणाम करके निकलूँगा, महाराज को पता नहीं चलना चाहिए। और महाराज जस्ट लेटे,
रात का समय था, सोने गए और महाराज लेट गए बेड पे। मैंने लाइट ऑफ किया, मैं रूम से बिल्कुल बिना आवाज़ किए बाहर निकला और दरवाजे के बाहर जाके, जाली वाला दरवाज़ा था, वहाँ जाके मैंने प्रणाम करके अपनी सेवा। तो देखा महाराज इतने केयरफुल हैं। जैसे ही मैंने प्रणाम किया, महाराज लेटे हुए बेड से उतर गए। क्यों? बेड से उतर के अपना कंबल हटा के नीचे प्रणाम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कितने महान। मतलब उस समय हार्ट पूरा ब्रेक हो जाता है कि कैसे क्या करें, मतलब कि एक डिवोटी ऐसे। लेकिन हमें अपने शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, देखना भी चाहिए। तो यहीं पे विराम देते हैं, समय बहुत कम है। किसी का कोई इस पे क्वेश्चन है? एक आधा कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं कई बार। यस होता प्रभु। आपने लास्ट टाइम बताया था वो अलवर जो है, आलवार, हाँ, आलवार, वो उसका मतलब भी बताया था लास्ट टाइम। कुलशेखर आलवार। हाँ, वो 12 अलवर में हाँ। जब आप अहोबिलम वाला हाँ, 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 हाँ। अलवर का मतलब बताया था। आलवार मतलब, ये आलवार एक टाइटल दिया गया है उन आचार्यों को जिन्होंने दिव्य प्रबंधम को कंपोज किया है। मतलब जैसे हमारे यहाँ 12 महाजन हैं या 6 गोस्वामीज हैं, ऐसे ही साउथ इंडिया में 12 आलवर्स हैं। आलवर्स मतलब जिनका भगवान के प्रति बहुत आकर्षण है। दोज हु हैव सो मच अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड, दे आर कॉल्ड आलवर्स। ओके, किसी भक्त ने हैंड रेस किया था शायद, या नहीं? ओके, प्राणवल्लभा माता जी वांट टू से समथिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। मुझे प्रणाम करते टाइम डीटीज लेफ्ट साइड में होते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है प्रभु जी मुझे कि कैसे करें कि डीटीज हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, या इज इट राइट? यस यस। तो गौड़िया वैष्णव परंपरा में डीटीज को हमारे लेफ्ट साइड विच इज टुवर्ड्स आवर हार्ट, उस समय उस साइड में हम प्रणाम करते हैं। गुरु को लेफ्ट साइड में भी प्रणाम कर सकते हैं और गुरु को सामने से भी प्रणाम कर सकते हैं। गुरु को दोनों तरह से प्रणाम, लेकिन हमें प्रैक्टिकली देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उज्जैन मंदिर में अगर जाओगे तो उज्जैन मंदिर में ऐसे इधर डीटीज हैं। जैसे हमारे वृंदावन में आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में प्रभुपाद जी हैं, पहले हम प्रभुपाद जी को करते हैं, गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर। लेकिन अगर उज्जैन में जाओगे तो प्रभुपाद जी इस साइड में। तो अगर आप प्रभुपाद जी को लेफ्ट साइड से प्रणाम करोगे तो डीटीज को पाँव हो जाएगा। इसी सेम चीज़ मदुरई में भी ऐसा ही है। कोलकाता में तो पीछे हैं प्रभुपाद जी, बैक साइड में, जहाँ तक मुझे याद है, बैक साइड में। तो लेकिन मदुरई में देखा मैंने, तो ऐसे कुछ मंदिर हैं क्योंकि वहाँ पे स्थिति ऐसा है। तो उस समय हम प्रभुपाद जी को सीधा भी प्रणाम कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं। डीटीज को हम पाँव नहीं कर सकते। सो प्रणाम करते हुए ये देखना है कि हमें प्रभुपाद जी को और डीटीज को पाँव ना हो, है ना। और लेफ्ट साइड में हम करें, गुरु को सामने से भी प्रणाम करते हैं स्थिति के हिसाब से, दोनों तरह से। और जब प्रणाम करते हैं तो जोर से प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। हमारे बेस में सबसे जोर से प्रणाम मंत्र बोलते हैं आदित्य प्रभु। वो प्रणाम मंत्र बोल रहे थे पूरा, सुना आपने कभी? पूरा एकदम, है ना। तो इतना ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोग अपना मंत्र ना बोल पाए और आप ही का सुन रहा है, ऐसा भी ना हो। लेकिन हमें उच्चारण करना चाहिए। नहीं, आपको नहीं कह रहा, आप अच्छा बोलते। तो हम नॉर्मली लोग साइलेंट प्रणाम करते हैं, है ना, साइलेंट प्रणाम करते हैं। तो हमें उच्चारण करना चाहिए। जैसे दीक्षा के समय भी जब गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं से लाउडली, यू हैव टू से लाउडली द प्रणाम। सो यस, तो इस तरह से है। प्रैक्टिकली भी देखना है, समय भी हो गया। तो मिल कूपन अभी मिल जाएगा तुरंत, जिसको आरती स्किप करना है, बट बेटर टू अटेंड आरती। एक और हैंड रेज है, माता जी, यू वांट टू से समथिंग?